उसमें भी तमिलनाडु शुमार है। चेन्नई मदुरई रूट पर तेजस एक्सप्रेस चलेगी, जो मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा उदाहरण है। தேஜஸ் எக்ஸ்பிரஸ் விரைவு வண்டி சில மாநிலங்களிலே தற்போது ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. அதில் ஒரு தடம் சென்னை மதுரை தடமானது, அது இப்போது இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. मित्रों, मैं चाहूंगा कि इसका आप बहुत स्वागत करें। हमारे चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महान एमजी रामचंद्रन के नाम पर करने का भी काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। இந்த தேஜஸ் எக்ஸ்பிரஸ் மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தின்படி அதற்குட்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அதே போல இன்னொரு விஷயம், சென்னை சென்ட்ரல் ரயில்வே நிலையத்தை டாக்டர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் பெயரால் எம்ஜிஆர் ரயில்வே நிலையமாக மாற்றி அமைத்திருக்கிறது மோடி அரசு. मैं कई बार डीएमके के नेताओं को सुनता हूं तो तमिलनाडु के अन्याय की बात करते हैं। मैं आज यहां पर आया हूं तब कांग्रेस पार्टी और डीएमके नेताओं को पूछना चाहता हूं कि 10 साल आपकी केंद्र में सरकार थी और 10 साल तक आपने तमिलनाडु को क्या क्या दिया, इसका हिसाब किताब लेकर चेन्नई के किसी भी चौराहे पर आप खड़े हो जाइए, हम जवाब देने के लिए आपको तैयार है कि हमने ज्यादा मदद करी है तमिलनाडु को या केंद्र सरकार आपकी थी तब हुई। और हम बड़ी विनम्रता के साथ कहते हैं कि हमने जो तमिलनाडु को योजनाएं दी है, रुपया दिया है, ये कोई तमिलनाडु को हेल्प करने के लिए नहीं दिया है। ये तमिलनाडु का अधिकार है जो आज तक नहीं मिलता था। नरेंद्र मोदी जी ने वो अधिकार यहां तक पहुंचाने का काम किया है। திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர்கள் அடிக்கடி தமிழ்நாட்டுக்கு மைய அரசு அநீதி இழைத்திருக்கிறது என்று கூறுவார்கள். நான் அவர்களிடம் இங்கே சென்னைக்கு வந்திருக்கிறேன், இங்கு அவர்களிடம் ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன். 10 ஆண்டுகளிலே நீங்கள் மைய அரசிலே ஆட்சி வகித்தீர்கள், அங்கம் வகித்தீர்கள். நீங்கள் இதுவரை தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன செய்திருக்கிறீர்கள் என்று பட்டியலிடுங்கள். எங்கள் தரப்பிலே மிகவும் பணிவோடு நான் நாற்சந்தியிலே நின்று கொண்டு நான் பட்டியல் கொடுக்க தயாராக இருக்கிறேன். நீங்கள் அதற்கு பதில் கொடுக்க தயாரா? मित्रों, मैं एक ही आंकड़ा देना चाहता हूं। जब केंद्र में अंतिम बार बजट पेश किया डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 2013-14 में 13-14 के बजट में तमिलनाडु के लिए 16,155 करोड़ रुपीस का प्रोविजन किया था और हमने जो बजट अभी अंतिम दिया उसमें 16,000 से बढ़ाकर 16,000 से इंक्रीज कर 32,850 करोड़ रुपया तमिलनाडु के लिए दिया है और योजनाओं का पैसा अलग से है। ஒரே ஒரு புள்ளி விவரம் மட்டுமே இங்கு அளிக்க விரும்புகிறேன். 13-14 நிதியாண்டுக்கான வரவு செலவு திட்ட அறிக்கையிலே தமிழ்நாட்டுக்கு மன்மோகன் சிங் அரசானது 16,155 கோடி ரூபாய்களுக்கான ஒதுக்கீட்டை செய்தது. கடந்த பட்ஜெட்டிலே வரவு செலவு திட்ட அறிக்கையிலே இந்த அரசானது 32,850 கோடி ரூபாய்களுக்கான ஒதுக்கீடை செய்திருக்கிறது. திட்டங்களுக்கும் மற்ற விஷயங்களுக்கும் தனியாக ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ், அதற்காக திட்டங்களுக்கு தனியாக ஒதுக்கீடு நடக்கிறது. मित्रों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत तमिलनाडु के लोगों को कोविड-19 के कालखंड के अंदर 4,300 करोड़ रुपीस सीधा उनके बैंक अकाउंट में सहायता के रूप में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी ने भेजा है। இந்த கோவிட்-19 பெருந்தொற்று இதனை ஒட்டி நேரடி பண பரிவர்த்தனை வாயிலாக தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 4,500 கோடி ரூபாய்கள் அவர்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. मित्रों, लगभग 108 करोड़ किलो खाद्यान्न तमिलनाडु के गरीबों को विगत 4 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी की ओर से भेजा गया है। 108 करोड़ किलो 108 கோடி கிலோ அளவிலான உணவு தானியங்கள் கடந்த 4 மாதங்களிலே
தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு மோடி அரசால் கொண்டு சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது. लगभग 3.33 करोड़ लाभार्थियों को 3.33 करोड़ किलोग्राम दाल का वितरण किया गया है. 3.36 கோடி அளவிலான பருப்பு வகைகள் இதே காலகட்டத்திலே விநியோகம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன ஏழை மக்களுக்கு. मित्रों, तमिलनाडु के अंदर 1.83 करोड़ महिला जनधन अकाउंट होल्डर को लगभग 917 करोड़ 917 करोड़ अप्रोक्सीमेटली 1000 करोड़ रुपया सीधा इनके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है. தமிழ்நாட்டிலே 1.83 கோடி பெண் ஜன்தன் கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு 917 கோடி ரூபாய்கள், சுமார் 1000 கோடி ரூபாய்கள் வரையிலான நேரடி பண பரிவர்த்தனை நடைபெற்றிருக்கிறது. मित्रों, उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 52.76 लाख फ्री गैस सिलेंडर गरीब महिलाओं को देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है. உஜ்வலா திட்டத்தின்படி 52.76 லட்சம் ஏழை தாய்மார்களின் வீடுகளுக்கு இலவச எரிவாயு சிலிண்டர் கொண்டு சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது. मित्रों, ढेर सारी सूची है. मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी कोई और कार्यक्रम में आप लोगों के सामने रखेंगे. मैं सब चीजें बता नहीं सकता, परंतु मैं इतना ही बताना आया हूं कि चाहे कोई भी कुदरती आपदा हो, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हो, या तमिलनाडु के गरीबों को आगे ले जाना हो, नरेंद्र मोदी सरकार, एनडीए सरकार, पलानीस्वामी सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और हर मौके पर तमिलनाडु के भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने को तैयार है. தமிழ்நாட்டின் தொழில்துறை வளர்ச்சியாகட்டும், கட்டமைப்பு உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடாகட்டும், ஏழைகள் நலனாகட்டும், என்டிஏ அரசு, மோடி அரசு, மாண்புமிகு பழனிசாமி அவர்களுடைய அரசு உங்களோடு, ஏழைகளோடு, தமிழ்நாட்டு மக்களோடு தோளோடு தோள் நின்று உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்போம் என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் உறுதிபட கூறுகிறேன். मित्रों, बहुत समय के बाद मैं चेन्नई आया हूं. थोड़ी राजनीतिक बात भी करना चाहता हूं. மிகுந்த காலத்திற்கு பிறகு நான் சென்னை வந்திருக்கிறேன். ஆகையால் நான் அரசியல் பற்றியும் பேச விரும்புகிறேன். नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद देश भर में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जातिवाद, ये तीनों को समाप्त करने की एक लड़ाई लड़ी है नरेंद्र मोदी जी ने. भ्रष्टाचार और जातिवाद की बात बाद में करूंगा, पहले मैं परिवारवाद की बात करना चाहता हूं. देश भर में अलग अलग राज्यों में जब जब चुनाव आया, मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और हर राज्य से परिवारवादी पार्टियों को चुनाव में करारी हार सहन करनी पड़ी है. अब तमिलनाडु की बारी है. यहां पर भी एक परिवारवादी पार्टी चलती है जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर नहीं चलती, परिवार को ही आगे बढ़ाकर अपनी राजनीति करती है. मुझे पूरा भरोसा है कि यहां पर आने वाले चुनाव में जब चुनाव होगा तब परिवारवादी शक्तियां समाप्त हो जाएगी और लोकतांत्रिक शक्तियां, डेमोक्रेटिक शक्तियां आगे बढ़ेगी. தமிழ்நாட்டிற்கு நான் வந்திருக்கும் இந்த வேளையிலே ஒரு விஷயத்தை நினைவுகூர விரும்புகிறேன். நரேந்திர மோடி அவர்கள் அரசியல் களத்திலே வந்த பிறகு 3 வாதங்களுக்கு எதிராக அவர் போர்க்கொடி உயர்த்தினார். அதில் அவர் வெற்றியும் கண்டு வருகிறார். ஒன்று ஊழல்வாதம், அடுத்ததாக பரம்பரைவாதம், குடும்ப அரசியல், அதற்கு அடுத்தபடியாக சாதிய அரசியல். இதிலே முதலாவதாக நான் பரம்பரை அரசியல் என்ற குடும்ப அரசியலை பற்றி பேச விரும்புகிறேன். குடும்ப அரசியல் நடத்தி வரும் இங்கே சில கட்சிகள்
அவர்களுக்கு அவர்களை போன்ற குடும்ப அரசியலை நாடு முழுவதும் நடத்தி கொண்டிருக்கும் தேசிய மாநில கட்சிகளுக்கு மக்கள் சரியான பாடத்தை புகட்டி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதே பாடம் தமிழ்நாட்டிலும் புகட்டப்படும் என்பது என் உறுதியான நம்பிக்கை. और मित्रों, बड़ा आश्चर्य होता है जब कांग्रेस और डीएमके के मित्र भ्रष्टाचार की, करप्शन की बात करते, जिनके नेतृत्व में 2G स्कैम हुआ, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, उनको क्या अधिकार है भ्रष्टाचार के लिए, करप्शन के लिए बोलने का? நண்பர்களே, எனக்கு ஒரு விஷயம் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்துகிறது. காங்கிரஸ், திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆகிய இவர்களுடைய கூட்டாட்சி இருக்கிறதே, இவர்கள் ஊழலுக்கு எதிராக பேசுகின்றார்கள். ஊழலுக்கு எதிராக பேசுவதற்கு இவர்களுக்கு என்ன அருகதை இருக்கிறது, அதிகாரம் இருக்கிறது? 2G அலைக்கற்றை மட்டுமல்லாமல் ஏகப்பட்ட கோடிக்கணக்கான ரூபாய் பெருமானம் உள்ள ஊழல்களை செய்தவர்கள், அவர்களுக்கு ஊழலுக்கு எதிராக பேச்சு பேச அவர்களுக்கு என்ன அருகதை இருக்கிறது? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के पहले अपने परिवार में क्या हुआ है उसका कच्चा चिट्ठाई एक बार देख लीजिए, कभी आप भ्रष्टाचार का नाम नहीं लोगे. ஊழல் குற்றச்சாட்டை நீங்கள் வைப்பதற்கு முன்பாக தயவு செய்து உங்கள் பின்னே உங்கள் குடும்பத்தை சற்றே திரும்பி பாருங்கள். அதற்கு பிறகு ஊழல் எது, ஊழல் இன்மை எது என்பது உங்களுக்கு புரியும். मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की दिशा में देश बहुत आगे बढ़ा है. 60 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर एक परिवर्तन लाने की शुरुआत की है. मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व के अंदर देश को एक सम्मान मिला है. पूरे विश्व का देश को देखने का नजरिया बदला है. मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है. अब तमिल मछुआरों के सामने कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता. उनकी सब कठिनाइयों को जानकर मोदी जी उनको वापस लाने के लिए सदैव तत्पर है. ஏழைகள் நலனிலே மோடி அரசு மிகுந்த கவனத்தை செலுத்தி வருகிறது. தமிழ்நாடு மீனவர்கள் இன்று அச்சமில்லாமல் இருக்கிறார்கள். ஒருவருக்கு கூட பாதிப்பு என்று இங்கே யாரும் வந்து கேட்பதில்லை. அதே போல உலக நாடுகள் இந்தியாவை பார்க்கும் கண்ணோட்டத்தையே மோடி அவர்கள் மாற்றி அமைத்திருக்கிறார். और मोदी जी जब श्रीलंका गए तब भी जाफना को नहीं भूले. वहां तमिल बस्तियों में जाकर अपने भाइयों बहनों को मिले और उनको आवास देने का, निर्माण का प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया. लगभग 50,000 से ज्यादा तमिल परिवारों को लंका के अंदर आवास मिलने हैं और क्षतिग्रस्त मंदिरों को भी पुनर्निर्माण का काम शुरू होना है. யாழ்ப்பாணம் சென்ற மோடி அவர்கள் அங்கே கூட வீடு இழந்த சுமார் 50 லட்சம் தமிழர்களுக்கு வீடுகளை கட்டி கொடுக்கும் ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கிறார். அவர்களுக்கு அங்கு பாதுகாப்பு, யாழ்ப்பாண தமிழ் சகோதர சகோதரிகளுக்கு அங்கே இல்லங்கள் இருக்கின்றன. அதே போல உலகம் மோடி அவர்கள் காரணமாக உலகத்திலே இந்திய நாட்டுக்கு ஒரு நன்மதிப்பு ஏற்பட்டிருப்பதோடு நமக்கு பாதுகாப்பும் இப்பொழுது நல்ல பாதுகாப்பும் கிடைக்கிறது. और मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सुरक्षा बलों का हौसला भी मजबूत है. मैं परसों की ही बात करना चाहता हूं. पड़ोस के देश से भेजे गए 4 आतंकवादी बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे. उनको पकड़ लिया गया, रास्ते में रोका गया और चारों के चारों बहुत बड़े असले के साथ, बहुत हथियारों के साथ एनकाउंटर में मारे गए. मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा बलों का जो हौसला मजबूत हुआ है, मैं आज उन सभी सुरक्षा बलों के जवानों का अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश को सुरक्षित किया है. और मुझे भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित रहेगी, देश विकास के रास्ते पर आगे भी बढ़ेगा और दुनिया भर में भारत का नाम और सम्मान दोनों आसमान के छूते हुए नजर आएंगे. मैं आज यहां से तमिलनाडु की जनता को अनंत अनंत शुभकामनाएं आज जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं इसके लिए देना चाहता हूं.
मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, इनके साथी मंत्री, सभी को भी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करना चाहता हूं। भारत माता की जय। நம்முடைய பாதுகாப்பு படையினர், நீங்கள் சற்று முன் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், 2 நாட்கள் முன்னதாக 4